Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from previous year's SimCats, and the set says 5 types of movie tickets M1, M2, M3, M4, and M5 were distributed among the employees of 4 departments, namely HR, Finance, Marketing, and Operation in XYZ Enterprises Private Limited. All the 5 type of tickets were distributed in all 4 departments. The HR manager asked a staff member to prepare a donut chart about the ticket distribution, but the staff member did not get all the numbers from the respective departments. For example, for the finance department, he got the exact number for only one type of ticket, that is to say 24 tickets of M5. However, he still drew the chart with the number he had collected from all the departments. The chart drawn by the staff member for the ticket distribution in HR, finance, marketing, and operation is given below. Basically, side में दिया हुआ है. The innermost circle in the chart represents HR. The second innermost represents as finance. The second outermost circle represents marketing, and the outermost circle represents operation. Later, the HR manager asked the staff member to collect the complete information from other colleagues and prepare a table of ticket distribution among across department. The staff member gathered the following information. Total number of M1 ticket distributed was 95. Total number of M3 ticket was 146. The number of M2 ticket distributed in finance was 17 more than the distributed in operations. The number of M4 ticket distributed in marketing was 2 more than the that distributed in finance. The number of M5 ticket distributed in operations was 11 more than the number of M1 ticket distributed in operations. The number of M5 ticket distributed in marketing was 4 more than the number of M4 ticket distributed in marketing. The number of tickets distribution in operation was 139. The number of M5 ticket distributed was 101. The total number of ticket distributed across all department was 584. A maximum of 50 tickets of any single type were distributed in one department. Questions पढ़ लेते हैं. Total number of M2 type ticket distributed was what is the difference between the number of M3 type ticket movie ticket distributed in HR and the finance department? Question number 3 बोला हुआ the number of M1 type movie ticket distributed in the finance department was, and question number 4, in how many department was the number of M4 type movie ticket distributed more than that of M5 type movie tickets? अपने को एक DI का सेट जिसके अंदर जो डेटा है वो डोनट चार्ट के फॉर्म पे दिया हुआ है. पार्शियल डेटा एंड द पार्शियल डेटा इज गिवन इन लॉजिकल स्टेट. यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 अलग अलग टाइप की मूवी टिकट्स है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 डिपार्टमेंट्स, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस, एंड उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन दी है. ठीक है, अब उसमें इन्फॉर्मेशन डोनट चार्ट भी, लॉजिकल स्टेटमेंट भी है. लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो मैंने क्या करा ना कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो डोनट चार्ट है पहले इसका जो ये पूरा डेटा है इसको मैं एक टेबलर फॉर्म पे डाल देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए. दिस विल बिकम इजी फॉर मी टू सॉल्व फर्दर. ठीक है, तो सिंस आई नो कि अंदर वाला चार्ट HR है तो मैंने उसी ऑर्डर में इसको लिख भी दिया है, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन. तो HR का 29 है यहाँ पे, 32 है M2, 30 है M4, 20 है M5. टोटल अपने को भी ध्यान नहीं दिया हुआ है. फाइनेंस का केवल अपने को एक ही चीज पता था, दैट वाज M4 विच इज 20 विच वाज 24. ठीक है, ये वाला. फॉर ऑपरेशंस सॉरी फॉर मार्केटिंग का कितना 35 है, ग्रीन वाला, यानी कि M3 इज 35. ठीक है, 28 इज M1 एंड 36. फॉर आउटर सर्कल 41 फॉर M4. ठीक है, एंड 40 फॉर M3. ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं. 29, 32, 30, 20 है ना, 24. ठीक है, 28, 36, 35 है ना, एंड 40 एंड 41. ठीक है, पहला काम तो मैंने ये करा कि ये जो जितनी डोनट के अंदर इंफॉर्मेशन इसको नोट डाउन कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिकल स्टेटमेंट्स, इनको भी लिख लेते हैं. ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट वाले में चले तो टोटल नंबर ऑफ M1 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 95. टोटल 95 का नंबर यहाँ पे आना है. ठीक है, नोटेड. टोटल नंबर ऑफ M3 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 146. M3 कितनी है, 146, सॉरी 146. यहाँ पे मैंने गलत नोट करा. हाँ, टोटल नंबर ऑफ M3 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 146, तो ये आ गया तुम्हारा 146. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ M2 टिकट
distributed in finance, M2 ticket in finance, M2 finance was 17 more than that in distributed in operations. अच्छा, यानी कि इससे ये 17 ज्यादा है। तो मान लेते हैं अगर ये A है तो ये A प्लस 17 ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ M2 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंस वॉज 17 मोर, 17 ज्यादा है, ठीक है। 17 अगर ज्यादा है तो ये इधर कर दिया। द नंबर ऑफ M4 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्केटिंग वॉज 2 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट इन फाइनेंस। अच्छा, M4 टिकट का बोला हुआ है कि ये जो the number of M4 ticket distributed in marketing was 2 more than that distributed in finance. ठीक है, 41 24। ओके, मैंने ये को यहाँ पे गलत करा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। ये जो 24 का डेटा है, दिस वाज फॉर 20 M5 ना। है ना? ये तुम्हारा ये जो इधर वाला सर्कल है 24 था, ठीक है। वापस से पढ़ते हो। द नंबर ऑफ M4 टिकट वॉज इन मार्केटिंग, M4 टिकट इन मार्केटिंग वॉज 2 मोर देन दैट इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंस। अगर मार्केटिंग वाली 2 ज्यादा है, अगर ये मान लेते हैं कि B है तो ये कितना होना चाहिए, B प्लस 2 होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। नंबर ऑफ M4 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मार्केटिंग वॉज 2 मोर देन दैट ऑफ द फाइनेंस। The number of M5 ticket distributed in operation was 11 more than that of the number of M1 ticket distributed in operation. Number of M5 ticket distributed in operation, M5 ticket distributed in operation was 11 more than the number of M1 ticket distributed in operation. मान लेते हैं ये तुम्हारा C है तो ये कितना हो जाएगा, C plus 11, ठीक है। ये भी नोट हो गया। The number of M5 ticket distributed in marketing was 4 more than number of M4 ticket distributed in marketing. Number of M5 ticket in marketing was 4 more than that, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था तुम्हारा B plus 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑपरेशंस वाज 139। ऑपरेशंस की जो टोटल टिकट है दैट इज 139, ठीक है। ये भी अपने को मिल गया 139। अच्छा, फिर ये था तुम्हारा 139। टोटल नंबर ऑफ M5 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड वाज 101, ठीक है। ये भी मिल गया 101। द टोटल नंबर ऑफ टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट वाज 584। ये तुम्हारा नंबर बन गया 584। A maximum of 50 tickets of any single type were distributed in one department. तो मैक्स टू मैक्स ये जो पूरे बॉक्सेस हैं 5x4 में, जो 20 बॉक्सेस, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 50, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये पूरा नंबर क्रंचिंग का सेट बन गया जिसके अंदर अपने को नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम करना है। अब नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे काम किया जाए, अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसा वैल्यू, ऐसे रो, ऐसे कॉलम की मदद लेना पड़ेगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पता हो, ठीक है। तो कॉलम वाइज यहाँ पे बहुत नहीं पता, यहाँ पे ये पता है कि दिस माइनस समथिंग ये कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यानी कि 95 माइनस दिस माइनस सी कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 95 में से माइनस करना है कितना, 29 और 28 को, तो 30 30 60 60 में से 3 माइनस कर देंगे तो यानी कि 57 माइनस कर देंगे। तो 15 में से 7 गया 8 और ये बच गया, 15 में से 7 गया 8 और ये बच गया तुम्हारा 3, यानी कि ये होना चाहिए था 38 माइनस सी, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ मिल गया। अच्छा, इधर करेंगे तो ये क्या आ गया, ये तो पूरा सम आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2a प्लस 32 36 17, यानी कि 32 और 36 कितना होता है, 6 2 8 3 3 6 68, 68 और 17 यानी कि 85। अच्छा, ये दोनों का सम कितना बन जाएगा, 146 माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा, 146 माइनस कितना 75, यानी कि करने पे आ जाएगा तुम्हारा 1 और 7, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो आना चाहिए 71। अच्छा, ऐसे यहाँ पे देंगे ये कितना बन जाएगा, 30 प्लस बी प्लस ये, तो यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा 2b प्लस 73, क्योंकि 30 और 41 होता है 71 और इधर कर देंगे तो 73, ठीक है। कॉलम पे अपने को सम दिया हुआ है, इससे अपन इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अपने पास रो वाइज देखते हैं, रो वाइज क्या है। रो वाइज अपने को ये पता है कि ये बन जाएगा तुम्हारा बी की वैल्यू कुछ दे देगा, ठीक है।
ये भी कुछ बन सकता है, ये भी कुछ बन सकता है, और ये भी कुछ बन सकता है। ठीक है, यहाँ से वेरिएबल का सम निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो बी प्लस सी का सम मिल सकता है, तो बी प्लस सी का सम कितना होना चाहिए, इक्वेशंस बनाते हैं, इससे अपने को यहाँ पे मदद होगा। बेसिकली वेरिएबल को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। बी प्लस सी क्या बन सकता है, 101 माइनस ये पूरा, तो यानी कि 20 और 24 और ये, तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 24 कितना होता है, 54, और ये कितना हो जाएगा 50, 44 और 50, 50 और 1 कितना होता है 61, है ना। 101 में से 61 माइनस करेंगे तो बच गया 40, यानी कि बी प्लस सी होना चाहिए 40। ठीक है, 4 6 11, 4 6 10 और 11 कैरी 1 2 4 5 और 61। ठीक है, 101 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन मिला। ठीक है, ये यहाँ से निकाला मैंने M5 को यूज करके। अच्छा, अ, यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। रो पे चेक करें, रो पे HR की मदद नहीं मिल पाएगी, फाइनेंस की मदद भी नहीं मिल पाएगी। मार्केटिंग की मदद क्या मिल सकती है, मार्केटिंग की ये मदद मिल सकती है कि भाई 28 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 2 प्लस 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2B प्लस 6 2 8। ठीक है, दिस इज 36 ना, तो यानी कि 8 6 14, 14 और 5 19, 19 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 कैरी 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 10 10 10, 100 है 7। अगर बी की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे ये भी निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, 2B प्लस 107 है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिल सकता है क्या, यहाँ पे A प्लस सी की वैल्यू मिल सकती है, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ पे और मिल सकता है, सी नहीं, A प्लस 2C ना, A प्लस 2C इज इक्वल्स टू कितना 139, 139 माइनस कितना, तो 40 प्लस 41 कितना होता है 81, 81 प्लस 11 कितना होता है 92, यानी कि 132 माइनस 92, यानी कि बच गया 7 और ये बच गया 47। ये इक्वेशन तुम्हें और मिल गया 47। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया ये वाले से, और कुछ इक्वेशन बन सकता है ऑपरेशंस वाले से हमने निकाला ना, सॉरी यहाँ से निकाला है, टोटल वाले से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को ये भी पता है और ये भी पता है, तो इससे A प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। इससे कुछ मदद मिल सकती है क्या, A प्लस बी मिलने का मतलब 584 माइनस द एंटायर वैल्यू, 584 माइनस 5 5 10 16, 16 और 3 19, और ये इधर कैरी 2, 5 प्लस 5 10 10 प्लस 6, और ये इधर 4 2 2 2 9 2 11 11 8 19 19 और 4 23 7 30 कैरी 3 4 5, यानी कि 5, यानी क्या बचा 84। ठीक है, तो यानी कि 2A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 84, यानी कि यहाँ पे एक इक्वेशन और बना, A प्लस बी इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब अपने को ये तीन कहानियां मिल चुकी हैं, अब इस तीन कहानी की मदद पे कुछ अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। ये तीन कहानियां पे क्या हम फिगर आउट कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तीन कहानी पे क्या है, बी प्लस सी ए प्लस सी। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को ए माइनस सी मिल जाएगा, यानी कि 1 और 3 को अगर माइनस करेंगे या उधर माइनस कर लो तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस 2C इज इक्वल टू 47, और यहाँ से मिल सकता है इन दोनों को माइनस करने पे ए माइनस सी इज इक्वल टू 2, ऐसा है ना, 42 माइनस 2 वो बन जाएगा ना 40, तो यानी कि ए प्लस बी माइनस कितना कर देंगे सी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2A प्लस 2C इज इक्वल टू 4। ठीक है, बेसिकली ये मिला ए माइनस सी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 इज इक्वल्स टू 2, ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना कितना, ये हो गया कैंसिल, 3A की वैल्यू मिल गई 51, ए की वैल्यू मिल गई 17। ठीक है, ए की वैल्यू में अगर 17 मिल गई तो यार कहानी तो आसान हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 17 है तो भाई बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पुट करके निकाल दो। अगर ए की वैल्यू 17 है तो सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इधर चला जाएगा 17, दिस विल बिकम 30 एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी 15। ठीक है, अगर सी की वैल्यू 15 है तो बी की वैल्यू क्या बननी चाहिए 25। ठीक है,
अब अपने को ये 3 वैल्यू मिल गई यूजिंग दोज इक्वेशंस। ठीक, अब ये 3 जो वैल्यू हैं इसको रिप्लेस कर दिया जाए इक्वेशंस के अंदर। चलो फटाफट से इस पे मेहनत कर लेते हैं। पहले ए वाली वैल्यू से रख लेते हैं ना, यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस 17 जाना है, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 17 और 17 34। ठीक है, ये आ जाएगा 17 और ये भी बन जाएगा 34। ठीक है, इसको हटा लेता हूँ। 34 और ये भी तुम्हारा 2a प्लस 85 बनाना था ना, ये बन जाएगा 34। ठीक है, एंड ये बन जाएगा 2a प्लस 85, तो यानी कि 17 टू जा 84, 17 टू जा 34, 34 और 30 85 यानी कि 119 119 119। ठीक है, ये बन गया। और कहाँ पे ए की वैल्यू अपने रखी हुई थी, चलो बी की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो बी बी प्लस 2 बी प्लस 6 ये सारी वैल्यूज को ना। ठीक है, अ, यहाँ पे फटाफट से लिखते चलते हैं। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 25, यानी कि 25 27। ठीक है, और इरेज करते चलते साथ साथ में। बी बी प्लस वैल्यू यहाँ पे 25 27 और ये 50 प्लस 73। ठीक है, और ये भी है ना, तो तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी 25, ये बन जाएगी 27, ये था +6 यानी कि ये बन जाएगी 31 एंड दिस वाज 2b प्लस 41 73 था ना। 2b प्लस कितना हुआ था 50, 50 प्लस 73 कितना हो गया था 123 हो जाएगा 123। 5 7 12 1 13 कैरी 1 3 1 4 6 8 ओ 4 12। ठीक है, परफेक्ट, ये आ रहा है। एक बार ये नंबर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। हालांकि नंबर तो सेट होंगे बिकॉज इक्वेशन से निकल गए, ऐसे रैंडम तो भरे नहीं, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लो। 5 9 14 14 6 20 20 3 23 23 और 1 24 कैरी 2 2 2 9 2 11 11 22 22 और 14 22 और 14 36 36 और 12 38 48 48 और 58। ठीक है, परफेक्ट, ये भी सेट हो गया। ये भी चेक कर, ये भी बना लेते हैं। 2b प्लस 107 यानी कि ये कितना बन जाएगा, 2b प्लस 107 हो जाएगा तुम्हारा, 2b हो जाता है 50 यानी कि ये बन जाएगा 157। ये आ जाएगा 157। ठीक है, अच्छा सी की वैल्यू भी मिल रखी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे सेट कर लेते हैं, यानी कि सी की वैल्यू इधर 15 है और ये 38 माइनस 15 हो जाएगी। 38 माइनस 15 कितना होता है, 38 माइनस 15 करेंगे, हाँ क्या करना था 38 माइनस 15, तो 38 माइनस 15 कर देंगे तो बन जाएगा 23। तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 9 3 12 8 20 5 25 9 3 8 9 3 11 9 3 12 8 20 25 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, परफेक्ट, ये भी सेट हो गया। अब अपने पास क्या बच गया, एक तो ये बच गया 71 वाली वैल्यू, इसका कुछ अपन नहीं कर पाए हैं, और एक तो ये भाई साहब ये भी अपने को बचा हुआ है ना C+11, इनको भी सही कर देते हैं, इनको भी लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, C+11 कितना हुआ 26, 26 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना है जो अपन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये वाला पार्ट वी आर नॉट एबल टू डिफाइन, इसकी वजह से हमें ये भी पार्ट नहीं मिल पाएगा, यानी कि टोटल एचआर और टोटल फाइनेंस भी यहाँ पे फिगर आउट नहीं हो पा रहा है। अब 71 का क्या कर सकते हैं, 71 का यार देखो मैक्सिमम वॉज 50, तो 50 और 21 हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा था ना कि मैक्सिमम कहीं पे 50 देना था, मैक्सिमम ऑफ 50 टिकट ऑफ एनी सिंगल टाइप वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डिपार्टमेंट। किसी एक डिपार्टमेंट में 50 दिया गया था, यहाँ बोला था, तो अभी तक 50 कहीं नहीं है, तो 50 यहीं पे आया होगा, यानी कि 50 और 21 आया होगा इस वाले में। ठीक है, इस वाले जगह पे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एक बन सकता है। यहाँ पे क्या वैल्यू बन सकती है, यहाँ पे बन जाएगा 20 30 32 29। ठीक है, तो ये बन गया था हमारा कितना, 2 2 4 9 13। अगर मान लो 50 लेता हूँ तो एक अलग वैल्यू आएगी और इसकी अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पे देखते हैं, अगर क्वेश्चन से ही कुछ मिल जाए हो सकता है अपने को इतना मेहनत ही ना करनी पड़े। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं उसके बेसिस पे मतलब शायद जरूरत ही ना पड़े ना इतना।
टोटल नंबर ऑफ M2 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना बोला था, ये कितना 119, तो यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए 119। ठीक है, ये तो अपना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो इससे तो अपन निकाल पाए, इससे तो कोई दिक्कत अपने को नहीं मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द M3 टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन HR एंड फाइनेंस। M3 इन HR एंड फाइनेंस, HR और फाइनेंस का यार देखो 50 और 21 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या बनेगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस ही पूछा हुआ है, क्योंकि वो तो है नहीं, तो 50 और 21 का डिफरेंस अपने को क्या बनना चाहिए 29 ही बनना चाहिए, यानी कि क्या आना चाहिए 29। अब ये लॉजिक समझना ना, यहाँ पे 71 सम बना रहा है और अपने को पता है कि 50 आएगा, वो कहाँ आएगा ये नहीं दिया हुआ है। इट कुड बी 50, 21, 21, 50, तो आंसर डिफरेंस क्या मार्क करेंगे 29। द नंबर ऑफ M1 मूवी टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस और M1, यानी कि फाइनेंस और M1 यही बोला हुआ है। व्हाट द नंबर ऑफ M1 टाइप ऑफ मूवी टिकट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फाइनेंस, तो यानी क्या होना चाहिए 23 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, in how many department was the number of M4 ticket type distributed was more than the M5 type ticket movie tickets। ठीक है, ऐसे कितने डिपार्टमेंट है जहां पे M4 was more, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, यानी कि गिवन 4 में से 3 जगह तो अपने को साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यही बोला था ना, इन हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको ऐसा दिख जाए कि भाई मूवी डिपार्टमेंट जो है M4 की टिकट वॉज मोर देन दैट ऑफ M5, तो 1 2 और यहाँ पे एक और मिल गया आपको 3, यानी कि 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपका ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई वुड रेट इज एज अ मॉडरेट सेट, मतलब ये नंबर क्रंचिंग का सेट है, और हर साल ऐसे सेट यार आपको मतलब सिमकैट सॉरी एक्चुअल पेपर में दिखाई देते ही देते हैं। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।